Class 9th, Jai Hind. So, your last chapter was finished, which gave us a lot of idea about democracy, Samvidhan. And what is next? Next is the design of constitution. Yes, your chapter 2nd states about the constitutional design. We are not moving on to the other section of your book, that means the other book, but we are continuing with the politics, democratic politics, because if you keep on switching from one subject to another subject, that would be very difficult for you to change your mood, change your mind, and to switch into the other section. So that's why we are continuing this chapter along with democracy. So democracy and constitution are they are somehow connected. And how they are connected? They are connected through a link. And what is the link? Constitution is something which is very essential to run a proper democracy. To achieve a proper democracy, we need a proper constitution. So without a constitution, democracy cannot be achieved. Democracy cannot be successful. So that's why we are talking today about constitution. So first of all, you need to understand what is constitution. In Hindi, it is Samvidhan. So in constitution, there are different laws, regulations, rules, etc., which defines how our country will be run, how we will elect our representative, who will be the people who will elect, who will cast vote, and what will be the criteria of the government, what will be the power of the government, what will be the power of opponent, and such kind of every right enjoyed by citizen, or the duties which are provided to the citizens of our country. Those particular all rules, regulations are specified in a book which is known as constitution. Now moving on to the constitutional design, which our chapter 2nd titles. So constitutional design, as the word suggests itself, we are talking about how our constitution was designed, how our constitution was framed, कैसे इसकी डिज़ाइन है, कैसे इसको हमने बनाया, फ्रेम किया. Now let us have the overview first. So not going word to word, let us go in short so that it would be better to understand. See, for running every country, there must be a set of rules and regulations specified in a written or oral form. Okay. So in our country, when we got independence in 1947, before that in 1946 one assembly was formed. Definitely हमको rules regulation चाहिए थे, यानी कि उसके लिए हमको constitution बनाने की ज़रूरत थी. But for framing a constitution, what way must be adopted, कैसे बनाया जाएगा, इसकी डिज़ाइन कैसी होगी, कहाँ से हम क्या चीज़ अडॉप्ट करेंगे, एंड इसके जो नियम कानून होंगे वो कैसे सही या कैसे गलत साबित होंगे. तो ये सारी चीज़ें बैठ करके डिसाइड की गई. एंड फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन 1946. ओके, एंड a few people were head of this particular assembly, like ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज देयर, जिसने ड्राफ्ट बनाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइप का होगा, इसमें भाग होंगे, इसमें धाराएं होगी, धाराएं अनुच्छेद जिसको हम बोलते हैं, आर्टिकल्स. तो टोटल 395 आर्टिकल्स वर देयर इन द इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन. सो उसका ड्राफ्ट तैयार किया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, एंड द चेयरपर्सन वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. इन लोगों ने मिल करके, इनकी एक असेंबली थी पूरे, और भी उसके अंदर लोग होते थे, एंड दे यूनाइटेडली फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इट वॉज अ वर्क डन बाय अ लॉट ऑफ पीपल. सो नाउ द क्वेश्चन राइज कि हम कैसे हमने वो बनाया होगा. क्या इसके अंदर लोगों के बीच में विचारों को लेके मतभेद नहीं हुआ होगा? यस, इट हैपन. बट व्हाट वी डिड, we divided the work, like the draft was prepared by B.R. Ambedkar,
and the chairperson was Dr. Rajendra Prasad, and he looked after all the workings of that particular assembly. And what that assembly did, that assembly played very smartly. उसने पूरे विश्व के एग्जाम्पल लिए, पूरे वर्ल्ड के, एंड इन द वर्ल्ड जहाँ जहाँ पर भी आंदोलन हुए, जहाँ जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कैसे बना था, वहाँ की क्या प्रमुख चीज़ें थी, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करते गए। एंड दूसरे देशों के एक्सपीरियंस से इंडिया ने सबक लिया। जो गलत था वो हमने अडॉप्ट नहीं किया, जो सही था वो हमने अडॉप्ट किया। एंड दस आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड विथ लिटिल पार्ट्स, छोटे छोटे जो पार्ट्स थे, छोटे छोटे कानून थे, धाराएं थी, जिसको हम अनुच्छेद बोलते हैं इन संविधान। तो उन सब को अडॉप्ट करके फाइनली हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रिपेयर किया। ओके, लाइक इमरजेंसी सिचुएशन होगी, उसमें हम क्या करेंगे, हमने वो पर्टिकुलर चीज़ें जर्मनी से ली थी। रिपब्लिक या इक्वालिटी और ये सारी चीज़ें हमने फ्रांस से ली थी। ओके, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमने यूएसए से लिया था। इस टाइप की जो अलग अलग चीज़ें हैं, सेक्शंस हैं हमारी डेमोक्रेसी के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमने अलग अलग देशों से ले करके बनाए हैं। सो दैट वाज द ओवरव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन। नाउ let us take the example of South Africa. You know this person, Nelson Mandela. He was just like Mahatma Gandhi in our country. So he fought for he fought against the color. There was a lot of exploitation done against the black peoples. So he fought against it. Ki black and whites are just color of a human, right? Of a person. It is not more than that. सिर्फ कलर है। सो वाइट और ब्लैक के बीच में जो डिस्टिंग्विश लोग पहले करते थे कि ये वाइट्स हैं, ये ब्लैक्स हैं, तो काले लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था। बहुत सारे जगह पर उनकी एंट्री नहीं होती थी। एंड इंडियंस वर कंसिडर्ड एज द ब्लैक पीपल। चाहे यहाँ के लोग गोरे भी हो तो भी भारत के लोगों को काला समझा जाता था। काला मीन्स ब्लैक पीपल। एंड इट वॉज अ सोसाइटी, मतलब एक सोसाइटी बन गई थी। अलग अलग एलिट क्लासेस जो होते थे वो वाइट क्लासेस होते थे, एंड ब्लैकिश पीपल को कई बहुत सारी जगहों पर एंट्री नहीं होती थी। कुछ रेस्टोरेंट्स में एंट्री नहीं होती थी, तो कुछ बीचेस पर एंट्री नहीं होती थी। सो कहीं जगह तो ऐसे भी बोर्ड्स लगे होते थे लाइक डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, डॉग्स एंड ब्लैक पीपल्स आर नॉट अलाउड। इस टाइप का एक्सप्लोटेशन होता था। तो उसके खिलाफ नेल्सन मंडेला काफ़ी समय तक लड़े। So here is his statement: I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democracy, a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. So it is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. So this is an ideal, यानी कि ये वो आइडियल चीज़ थी जिसके लिए नेल्सन मंडेला अपना जीवन भी त्याग सकते थे। एंड वो एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहाँ पर सारे लोग मिलकर रहे, हार्मनी के साथ रहे, भाईचारे के साथ रहे, सभी को बराबर अवसर मिले, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो। सो सी हियर इज़ अ बोर्ड, इट इज़ गिवन हियर। ऐसे बोर्ड्स लगे होते थे। नेटिव इंडियंस, जो इंडिया से हैं, नेटिव इंडियंस, एंड कलर्ड यानी कि काले लोग। इफ़ यू एंटर दिस प्रीमिसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग। अगर इस पर्टिकुलर प्रीमिसेस में आप एंटर करते हैं रात के समय तो आप गायब कर दिए जाएंगे। आर्म्ड गार्ड्स शूट ऑन साइट, सेवेज डॉग्स डिवोर द कॉर्प्स। सो कुत्ते आपको या तो खा जाएंगे या जो गार्ड्स हैं यहाँ के वो आपको गोली मार देंगे, इसलिए आपको वार्न किया जाता है। सो इस टाइप के बोर्ड्स बहुत कॉमन थे उस समय पर। सो स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थिड। अपार्थिड वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। यहाँ पर जो अपार्थिड पीपल थे वो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो एक सिस्टम चलता था उसको अपार्थिड बोलते थे इन साउथ अफ्रीका। सो द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका
during the 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with arms and force. In this way, they occupied India. But unlike India, a large number of whites have settled in South Africa and became the local rulers. So the system of apartheid divided the people and labeled them as the basis of their skin color. And also the native people of South Africa are in black color, so they made up 3/4 of population and called blacks. तो वहाँ के लोग जो जस्ट लाइक इन इंडिया, ब्रिटिश पीपल जो गोरे लोग थे यहाँ पर आए थे इंडिया में और सेटल हो गए थे और रूल करने लगे थे. सेम इज़ द केस विद साउथ अफ्रीका. वहाँ पर भी 3/4 यानी कि 75% लगभग जो लोग थे, 3/4 यानी कि 75% लगभग ब्लैक पीपल्स थे. एंड डेफिनेटली वाइट पीपल और ब्लैक पीपल का जब यहाँ पर भी मिक्सचर हुआ तो ब्लैक पीपल के साथ में यहाँ पर उनको अपार्थाइड यानी कि कहीं ना कहीं सोसाइटी से अलग समझा जाने लगा. सो जिसने एक नई प्रॉब्लम को साउथ अफ्रीका में जन्म दिया. और नॉन वाइट्स को कभी भी वोटिंग का राइट्स नहीं होता था. जब वहाँ पर चुनाव भी होते थे तो जो ब्लैक पीपल थे उनको चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं था. ओके एंड उनको डेफिनेटली ब्लैक पीपल को ऑप्रेस किया जाता था, दबाया जाता था उनको. एंड वाइट एरियाज़ जहाँ पर वाइट लोग जहाँ पर रहते थे उन एरियाज़ में उनको जाने नहीं दिया जाता था, काम नहीं करने दिया जाता था, उनके पास परमिट नहीं होते थे. ट्रेन, बसेस, टैक्सी, हॉस्पिटल, स्कूल्स, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर यानी कि जो कॉमन पब्लिक प्लेसेस होती थी वहाँ पर ब्लैक्स को आने की अनुमति नहीं होती थी. दिस वॉज अ प्रॉब्लम. एंड सी हियर इट इज़ गिवन सिटी ऑफ डरबन में बाथिंग एरिया जो बीच पर था वहाँ पर सिर्फ वाइट लोगों के लिए था, यानी कि आप उसके अंदर दूसरा कोई व्यक्ति वहाँ पर घुस नहीं सकता था. सो अलग अलग लैंग्वेज में सेम मैसेज लिखा हुआ था. ओके, सो वी हैव स्टार्टेड इट. नाउ रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.